Good morning, everyone. Am I audible? Good morning, sir. Good Yes, morning, sir, sir. you're Good morning, Good sir. morning, sir. Okay, am I audible? yes, yes. Okay. So I think this is your first class, na? So this is the first class means first time you are attending this lab, data structure lab. Yes, sir. So okay, so you already know the subject C, I think, because already you taught that subject in your second semester, na? Yes, Yes, sir, sir. yes, sir. Yes, sir. The Okay. language C? Yes. You mean the language C? Yeah, programming language. So basically Yes. in yes, basically in a data structure lab, we need the concept of the C programming. Okay, in sometimes it's in advanced level, but it's almost same. Some we need some logic like array, loops, okay, structure, union. Sometimes most of the time we need structure and pointer. Okay, so so today we'll discuss some basic part. Okay, so so clear करना है पहले, then after we will start some other things. So today first we discuss about some basic part, then we will give you one assignment, and your due date will be 1 week, 7 days. So uh, you have some ideas about array, na? You know what is array? Yes, sir. Okay, so someone can tell me what is array? A set of Sir, Okay, one by one. Now everyone is talking. sir, a set of specific data type which allocates continuous memory location. Continuous memory location. You know what is the meaning of that continuous memory location? Sir, they locate in a continued format of memory, like the memory is into something 1 2 3 4 5. Then the next will be on 1 2 3 4 5 6. So like Okay, this, sir. okay. So how you know how to assign that memory? Yes, sir. Using pointers and that function malloc, calloc. So that's when you have some idea about malloc and calloc, na? Yes, sir. Some idea we Yes, have. sir. Okay, very good. So that's mean you know you have some idea about malloc and calloc. That mean you know how to assign the memory. Okay, very good. So today we'll discuss some basic topic. Okay, just like what is a structure, what is pointer, okay, and how we can use that thing. So just wait. Okay, I will share the PPT, and then Ramlodi sir will discuss everything. Is it visible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes. yes, sir.
Okay, your okay, presentation. okay, okay. Sir, Yes, yes. sir, do we need see in the first class, today's class? Yes. Unit C from your first PC, class. PC, laptop. PC or laptop. Just check this thing, and we will give you some assignment. To complete this assignment, you need PC, na? But you have all the 7 Sir, days. this class. Your sound is not coming Yes, sir, properly. but now, Your sound is not sir, coming properly. now, No, dear, your sound is not breaking. Just now, sir. yes, now it's okay. So, I was asking, in this class, do we need laptop? This class assignment we have, but for now, do we need? No. Right now, if you have your laptop, Okay, sir. then it is okay. Otherwise, it is not a problem. Just we'll give some assignment after showing these slides, some slide. We'll give you some assignment, and you have to make this assignment, complete this assignment within 7 days. After 7 days, you have to submit. Next week, you have to submit your assignment. Okay. So don't worry. Okay, Just sir. okay. Now I'll over to Lodi sir. Hello. Hello. Audible? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Your voice is coming. Okay. I am Ram Nivas Lodhi. Okay. Today we will discuss some basic concept like data pointer, ठीक है, function, array. Okay. Let's start data structure lab. ठीक है. So pointer. So first of all, we discuss some basic concept. So what is pointer? So a pointer is a variable whose value is the address of another variable. ठीक है. पॉइंटर क्या होता है? एक जो कि एक एड्रेस को होल्ड करके रखता है. ठीक है. डायरेक्ट एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन like any variable or constant. You must declare a pointer before using it to store any variable address. Okay. Then a declaration of pointer है. Then how can declare type type declaration pointer type star टाइप स्टार. तो किस प्रकार से करेंगे इसको? टाइप स्टार बार. ठीक है. वेरिएबल नेम. देन टाइप में भी इंट, फ्लोट, डबल फ्लोट. ओके. कुछ भी हो सकता है. क्या होगा? इंट स्टार आईपी पॉइंटर टू ए इंटीजर, डबल स्टार डीपी पॉइंटर टू ए डबल, एंड फ्लोट स्टार एफपी pointer to a float.
कैर स्टार ch पॉइंटर टू ए कैरेक्टर। इस प्रकार से हम इनको डिक्लेयर कर सकते हैं। देन हाउ टू यूज ए पॉइंटर, पॉइंटर को किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो वे है, ठीक है। देयर आर फ्यू इम्पोर्टेंट ऑपरेशन विच इज वी विल डू विथ द हेल्प ऑफ पॉइंटर, ठीक है। फर्स्ट वे, वी डिफाइन अ पॉइंटर वेरिएबल, ओके, then assign the address of a variable to a pointer, and finally access the value at the address available in the pointer variable. Then this is done by using unary operator star, okay, that returns the ठीक है। This is done by using unary operator star that returns the value of the variable located at the address specified by its operand। Then pointer example है ये, ठीक है। hash include stereo.h int main, देखिए int variable equals to 20 एक्चुअल वेरिएबल डिक्लेरेशन, यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है और वैल्यू इसको, इस वेरिएबल को कितना असाइन किया गया है, 20 वैल्यू असाइन किया गया है। int स्टार IP पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेरेशन, यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया गया है, ठीक है। IP इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ वेरिएबल, ठीक है, मींस यहाँ पे एक वेरिएबल है, इसको वेरिएबल है ये 20 इसकी वैल्यू है असाइन की गई है, इसका एड्रेस मान लीजिए यहाँ पे 100 है, तो IP क्या है, एक पॉइंटर है, ठीक है। IP एक पॉइंटर है, इसको जो इसका ये क्या है एड्रेस होल्ड करके रखेगा, ठीक है, पॉइंटर। देन एड्रेस ऑफ वेरिएबल, ये है ना एड्रेस ऑफ वेरिएबल, इस वेरिएबल का एड्रेस किस में असाइन कर दिया है, पॉइंटर में, तो यहाँ पे असाइन कर दिया 100, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, वेरिएबल परसेंटेज x किसके लिए यूज करते हैं, परसेंटेज x जब भी एड्रेस को हमारे लिए प्रिंट करना होता है ना, परसेंटेज x, परसेंटेज d इंटीजर के लिए करते हैं, %c कैरेक्टर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। /n, हेलो सर। यस बोलिए सर ये आपने बताया कि सर पॉइंटर ऐसे डिक्लेयर करते हैं कि इंड स्टार जो भी है पॉइंटर, तो सर पॉइंटर बेसिकली क्या स्टोर कर रहा होगा कि मतलब अगर कोई वेरिएबल है आई लेट्स से, तो आई का एड्रेस स्टोर कर रहा होगा, तो अगर हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि सिर्फ इंड पॉइंटर और पॉइंटर इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ आई, मतलब उसमें क्या प्रॉब्लम है सर, मतलब क्यों इंट स्टार पी यहाँ पे लिखना पड़ रहा है, मतलब क्योंकि वो एड्रेस तो बेसिकली एक नंबर ही होगा ना, तो मतलब इंट पी लिख के और फिर पी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ आई लिखना है, तो मतलब वो भी तो नो यहाँ पे है ना जो इंट स्टार IP है, ये पॉइंटर है, ओके, इस नो प्रॉब्लम, बट ये पॉइंटर पॉइंटिंग टू द वेरिएबल वैल्यू, ठीक है, IP, तो स्टार IP बेसिकली रिप्रेजेंट द वैल्यू, वेरिएबल वैल्यू, ओके। स्टार IP मींस दिस डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर, ओके, समझ में आया ना, ये डिक्लेरेशन है पॉइंटर का, और मींस IP इज अ पॉइंटर, बट पॉइंटर किस टाइप का है, इंटीजर पॉइंटर है, ठीक है। तो स्टार IP मींस जो वैल्यू, जो पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वेरिएबल की वैल्यू को, ठीक है, वो किसको 100 को होल्ड करके रखा है, तो 100 की लोकेशन पे जो भी वैल्यू होगी तो स्टार IP में वो वैल्यू उस पर प्रिंट हो जाएगी, यही है ना, आप मतलब क्या पूछना चाहते हैं, व्हाट्स योर क्वेश्चन। सर मैं ये पूछ रहा हूँ सर, मतलब इंट स्टार पीटीआर लिखने की क्या जरूरत है, इंट आईपी लिख के और फिर आईपी इज इक्वल टू जिसका भी एड्रेस स्टोर कराना है मतलब वैसे करा दीजिए, तो मतलब वो भी तो पॉइंटर, मतलब काम तो वही कर रहा है ना, क्योंकि वो भी तो एक नंबर ही स्टोर करेगा, क्योंकि एड्रेस एक नंबर ही होगा, तो मतलब स्टार स्पेसिफिकली क्यों असाइन करना पड़ा ये, मतलब जो भी जिसने भी सी बनाया उसको।
तो देखिए वो भी आप लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टार जो पॉइंटर है ना, तो वो मतलब जो पॉइंट करेगा इसके लिए। अब यहाँ पे देखिए अगर इंट आईपी रखेंगे आप ना, तो ये नॉर्मल वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल वेरिएबल एड्रेस को होल्ड तो नहीं कर पाता ना, समझ में आया ना। तो यहाँ पे फिर उसमें क्या मतलब अंतर क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वेरिएबल है, इंट वेरिएबल है, तो यहाँ पे वेरिएबल इसको तो नहीं कहेंगे कि ये पॉइंटर है, ठीक है। लेकिन इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, उसी में क्या रिप्रेजेंटेशन है, उनने क्या यूज किया है, इसमें हम नहीं जाएंगे, क्योंकि एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का, समझ में आया ना। ठीक है, वी विल डिस्कस डीपली in next lecture. Okay, no problem, this is only basic. Okay, and अगर यहाँ पे देखिए इंट वेरिएबल है, इंट अगर आईपी कर देता है यहाँ पे, तो भी यहाँ पे नॉर्मल वेरिएबल हो जाता है, क्योंकि पॉइंटर इज नॉट अ नॉर्मल वेरिएबल, मतलब इट्स होल्डिंग द एड्रेस ऑफ सम वेरिएबल। ओके ओके, हेलो, ओके सर। ओके। देन प्रिंट एफ एड्रेस स्टोर इन आईपी वेरिएबल, देन क्या हो जाएगा, यहाँ प्रिंट हो जाएगा प्रिंट एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एक्स है प्रिंट किया है आईपी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी यहाँ पे एक्स परसेंटेज एक्स यूज करते हैं एड्रेस को प्रिंट कराने के लिए, तो यहाँ पे प्रिंट एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक्स जो आईपी का एड्रेस है वो प्रिंट हो जाएगा। देन क्या है, प्रिंट वैल्यू ऑफ स्टार आईपी वेरिएबल परसेंटेज डी स्लैश एन, देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा स्टार आईपी मीन्स हो जाएगा ये 20 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है 20। देन क्या है देखिए, टाइप ऑफ पॉइंटर, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉइंटर, फर्स्ट वन है नियर पॉइंटर, नेक्स्ट है फार पॉइंटर, एंड थर्ड वन है नल पॉइंटर, ठीक है। फर्स्ट वन है नियर पॉइंटर। व्हाट इज नियर पॉइंटर, ठीक है। इफ द इंटायर प्रोग्राम फिक्स within one segment, okay, then to store address of any variable of that program, we need near pointer, okay, it's occupied 2 bytes, ठीक है। बाय डिफॉल्ट एवरी पॉइंटर इज ए नियर पॉइंटर, ठीक है। तो ये नियर पॉइंटर है, तो यहाँ पे जो इसमें बाय डिफॉल्ट सभी जो पॉइंटर रहते हैं वो नियर पॉइंटर रहते हैं, ठीक है। ए मेमोरी में कितना बाइट ऑक्यूपाई करता है, 2 बाइट मेमोरी लेता है, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका, स्लैश हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मैन, यहाँ पे इंट एक्स इक्वल्स टू 20, ठीक है। इंट नियर स्टार पीटीआर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है देखिए, जैसे एक कोई वेरिएबल है, इसमें 20 वैल्यू इसमें, ठीक है, 25 वैल्यू है इसमें, और इंट नियर पॉइंटर यहाँ पे देखिए जो एक्स की वैल्यू है ना, पीटीआर में असाइन करेगा इस तरीके से, ठीक है। इसका कोई एड्रेस होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। और परसेंटेज डी, लेकिन यहाँ पे प्रिंट क्या करवा रहा है, परसेंटेज डी साइज ऑफ पीटीआर, ठीक है। साइज ऑफ पीटीआर तो कितनी साइज है पीटीआर की, तो यहाँ पे 2 बाइट साइज आ जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर है। अगर करेक्टर पॉइंटर होता तो यहाँ पे साइज ऑफ करेक्टर पॉइंटर, इसमें देखिए साइज ऑफ पॉइंटर है ना, तो एवरी पॉइंटर जो साइज रहती है ना, एवरी पॉइंटर क्या रहता है, नियर पॉइंटर रहता, नियर पॉइंटर रहता, तो नियर पॉइंटर कितना साइज ऑक्यूपाई करता है, तो वो 2 बाइट करता है, तो 2 बाइट ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बाइट आंसर आ जाएगा। देन है फार पॉइंटर, ठीक है। इफ द एंटायर प्रोग्राम does not fit within one segment, then to store address of that variable we need far pointer। सर हम्म, सर इसकी पॉइंटर की साइज तो 8 बाइट्स होती है ना।
8 बाइट्स वो डबल जो डिक्लेरेशन करते हैं 8 बाइट पॉइंटर की नहीं रहती है, जो फ्लोट है रहता है उसकी 4 बाइट रहती है, ठीक है। इंटीजर रहता है उसकी 2 बाइट रहती है। डबल फ्लोट रहता ना, डबल फ्लोट रहता है उसकी साइज रहती है 8 बाइट, ओके। एंड करेक्टर पॉइंटर की 1 बाइट रहती है, ओके। हाँ, ओके। इट टेक्स 4 बाइट, ठीक है। फार पॉइंटर टेक्स 4 बाइट, 2 बाइट्स फॉर सेगमेंट, ओके, लाइक दैट सेगमेंट एंड एड्रेस, ठीक है। 2 बाइट्स फॉर सेगमेंट और 2 बाइट्स फॉर एड्रेस, ठीक है। एड्रेस या ऑफसेट, ठीक है। 2 बाइट सेगमेंट एड्रेस एंड 2 बाइट फॉर ऑफसेट। देन एग्जांपल मैन int I equals to 265J, ठीक है। एंड करेक्टर पॉइंटर स्टार IP स्टार P, ठीक है। देन क्या है यहाँ पे जी, I एक वेरिएबल है, यहाँ पे क्या है 265, ठीक है, असाइन किया गया है। करेक्टर पॉइंटर है तो P इज ए पॉइंटर मीन्स 100 है, यहाँ पे कोई वैल्यू होगी, एड्रेस होगा I का। अब यहाँ पे क्या है, I का एड्रेस असाइन किया गया है P को, ठीक है। तो P को असाइन कर दिया तो यहाँ पे ये पॉइंट करने लगा स्टार P J, ठीक है। स्टार P क्या है यहाँ पे, ये जो वैल्यू है यहाँ पे 265 है ना, इसको J में क्या है कॉपी करवाया गया है, एक वेरिएबल J है, ठीक है। लेकिन वेरिएबल क्या है, इंट टाइप है। अब लेकिन जो करेक्टर पॉइंटर है वो 1 बाइट को ही असाइन करेगा, ठीक है। क्या 1 बाइट, जो करेक्टर पॉइंटर है ओनली 1 बाइट रहता है इसका साइज। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउट परसेंटेज डी जे, ठीक है। लेकिन इसमें जो आउटपुट आना चाहिए, तो व्हाट इज आउटपुट 265 आउटपुट आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आउटपुट क्या दे रहा है 9 आउटपुट दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जो हमारा 265 का बाइनरी नंबर रहेगा, कुछ जो भी बाइनरी नंबर हम करेंगे ना, तो वो 1 सेगमेंट में फिट नहीं होगा। मीन्स 2 बाइट यहाँ पे आएगा और 2 बाइट यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिए चाहिए कौन सा, करेक्टर पॉइंटर ओनली 1 बाइट को रीड करता है। तो 1 बाइट में यहाँ पे क्योंकि जो 265 का बाइनरी नंबर है वो पूरा नहीं आ पा रहा, मीन्स आधा जो नंबर आएगा ओनली, ठीक है, 9 का, ठीक है। मान लीजिए जे आएगा आप पे, ठीक है, 8 और 9, इसके बाद 4 जीरो रहेंगे। तो इतने को रीड कर रहा है कौन, करेक्टर पॉइंटर। इसलिए हमारे लिए यहाँ पे टाइप कास्टिंग करनी होगी, वो हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। आपने पढ़ा भी होगा सी में टाइप कास्ट कैसे करते हैं। तो करेक्टर पॉइंटर को इंटीजर पॉइंटर में जब हम कन्वर्ट करेंगे ना, तब ये यहाँ पे ये जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे 265 आएगा, ओके। तो यहाँ पे ये मतलब यहाँ पे ओनली फार पॉइंटर का एग्जाम्पल समझाने के लिए लिया गया है। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे 9 क्यों आया? 9 इसलिए आया, देखिए एक फर्स्ट ऑफ मुझे बताइए जो 265 का क्या रहता है बाइनरी नंबर, बताइए। यस सर, कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे। हाँ नो प्रॉब्लम, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। मैं मान लेता हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 1 सेगमेंट में आ रहा है, ठीक है, ओके। करेक्टर पॉइंटर क्या है, देखिए ये ओनली इस ये 2 बाइट के लिए है, मान लीजिए इसकी साइज 2 बाइट है, ठीक है। तो 1 बाइट यहाँ पे है और 1 बाइट यहाँ पे है, ओके। यहाँ पे मान लेते हैं हम कुछ भी है, मान लीजिए बाद में कैलकुलेट कर लेना। और ये सेवन मान लीजिए इस तरीके का है कुछ, ठीक है, इस तरीके का बाइनरी नंबर है, ठीक है। मतलब किसका है ये 265 का बाइनरी नंबर है, ओके। और तो यहाँ पे देखिए, तो ये क्योंकि यहाँ पे हमने करेक्टर पॉइंटर को क्या किया है, ठीक है, यहाँ पे करेक्टर पॉइंटर लिया है। तो करेक्टर पॉइंटर क्या है, उसकी साइज रहती है 1 बाइट। तो 1 बाइट ये यहाँ पे ओनली इसको रीड करेगा, इतने पोर्शन को रीड कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ओनली 1 बाइट रीड करने की है। इसलिए जो हमारा, देखिए ये तो सही है, ये 9 है ना, तो इसका जो बाइनरी नंबर है उठा के इसको प्रिंट करवा देगा, ठीक है, इसको प्रिंट करवा देगा। तो ये बाइनरी नंबर 9 होता है, ठीक है, इसका 9। चूंकि ये वाला पोर्शन छूट जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ये करेक्टर पॉइंटर डिफाइन है, तो यहाँ पे इसलिए जो 9 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे 9 आ रहा है। अगर हम इंटीजर पॉइंटर अगर यहाँ पे, ठीक है, डिक्लेयर करते, तो इंटीजर पॉइंटर पूरे वाले 2 बाइट को रीड करता, तो फिर हमारा जो आंसर है सही आ जाता। तो इसको देखो टाइप कास्ट कैसे करेंगे यहाँ पे, तो जैसे जे है ना, तो जो पॉइंटर है ना इसका इस जो पॉइंटर है ना, इस करेक्टर पॉइंटर को हम टाइप कास्ट कर देंगे, ठीक है, इंटीजर में।
तो वो हम आगे देखेंगे, इसलिए वो यहाँ पे 9 दे रहा है, नहीं तो फिर ये 265 करेंगे इसको। ठीक है, ये गेट वगैरह में भी कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, 1 मार्क्स का आया है। ठीक है, आगे वो अभी तो नहीं है, आप 3rd ईयर में या फाइनल ईयर में देंगे तो आएगा ये आगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे। नेक्स्ट है नल पॉइंटर। व्हाट इज नल पॉइंटर? इट इज always a good practice to assign a null value to a pointer variable in case you do not have an exact address to be assigned. This is done at the time of variable declaration. Okay, a pointer that is assigned null is called null pointer. ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे है int star IP। ठीक है, इसमें क्या रहता है, जैसे कोई वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये पॉइंटर है, तो ये पॉइंटर का जो क्या है ना, एड्रेस डिफाइन नहीं रहता है। जैसे यहाँ पे नल दे दिया, तो नल मतलब कोई लोकेशन को वो वहाँ पे कोई लोकेशन नहीं असाइन नहीं की, तो यहाँ पे मतलब जो नल पॉइंटर रहता है। ठीक है, इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया। ठीक, मतलब इस तरीके से क्या है, कोई लोकेशन नहीं मिली तो वहाँ पे उसको पॉइंट नहीं कर पाता। नेक्स्ट है फंक्शन। Then what is function? A function is a group of statements that together perform a task. Every C program has at least one function, which is main, and all the most trivial program can define additional function. Declaration of function. A function declaration tells the compiler about a function's name, return type, and parameter. A function definition provides the actual body of the function. The C standard library provides numerous built-in functions that your program can call. For example, strcat, ठीक है, string concatenation, ठीक है, to concatenate two strings, ठीक है, mem कॉपी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कॉपी टू वन मेमोरी लोकेशन टू अनदर मेमोरी लोकेशन। जब हमारे लिए एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन को कॉपी करना पड़ता तो ये फंक्शन यूज कर लेते हैं। ठीक है, एंड मैनी मोर फंक्शन। सिंटैक्स ऑफ फंक्शन, ये सिंटैक्स है। ठीक है, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, ठीक है, और पैरामीटर लिस्ट, यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट पास करेंगे। ठीक है, ये बॉडी ऑफ द फंक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, देखिए, फंक्शन रिटर्निंग द मैक्स बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा 2 नंबर के बीच में। ठीक है, इंट मैक्स, इंट num1, इंट num2। ठीक है, यहाँ पे ये पैरामीटर पास किया गया है। ठीक है, लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन है। ठीक है, इंट ये क्या है, इंट रिजल्ट। इफ कंडीशन क्या है, इफ num1 इज ग्रेटर देन num2। ठीक है, अगर num1 इज ग्रेटर num2 है तो रिटर्न करेगा क्या, num1, एल्स num2 करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है रिकर्सन। ठीक है, तो रिकर्सन क्या है, रिकर्सन इज द प्रोसेस विच कम्स इनटू existence when a function call a copy of itself to work on a smaller problems. Any function which calls itself is called recursive function, and such function calls are called recursive calls. Okay, recursion involves several numbers of recursive calls. However, it is important to impose a termination condition of recursion. Recursion code is shorter than iterative code. However, it is difficult to understand. Example of recursion, ठीक है, ये recursion का एग्जाम्पल है। ठीक है, एंड ये इसको किस तरीके से इंट एन। ठीक है, तो ये यहाँ पे है प्रिंट इंटर द नंबर हुज फैक्टोरियल यू वांट टू कैलकुलेट।
ठीक है। स्कैन एफ परसेंटेज जी एड्रेस ऑफ एन, ठीक है। एफ इक्वल्स टू फैक्ट एन, ठीक है। प्रिंट फैक्टोरियल परसेंटेज डी एफ, ठीक है। इस प्रकार से इसको एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। ये क्या है, इफ एन इक्वल्स टू जीरो रिटर्न जीरो, ठीक है। जो फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल क्या होता है, Sir, ठीक है। there जी should जी be return 1 if n is equal to 0. यार यार देखिए, फैक्टोरियल फैक्टोरियल जीरो कितना होता है, फैक्टोरियल जीरो मीन्स जीरो। 1. No, sir, it's 1. यार Factorial 0 is 1. फैक्टोरियल जीरो Factorial इज 0 is 1. Yes, sir. यहाँ पे मतलब जो फैक्टोरियल जीरो एन इक्वल्स टू जीरो इक्वल्स डी तो रिटर्न 1। Yes, sir. ओके ओके यार Correct, sir. Correct. okay. And else if n equals to 1 then return 1, and else अगर ये जीरो नहीं है 1 नहीं है तो यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। देन ए स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन C and C++। Structure create a data type that can be used to group item of possibly different type into a single type। अब देखिए, जो एरे है ना और स्ट्रक्चर है, इसमें डिफरेंस क्या है, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड स्ट्रक्चर प्लीज। सर एरे में सिर्फ एक टाइप का डेटा टाइप ले सकते हैं, स्ट्रक्चर में बहुत सारे टाइप्स के आ सकते हैं। जी 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 या गुड गुड, ठीक है। तो इसमें क्या है, एरे में सिमिलर टाइप डेटा ले सकते हैं, या वो भी इंट भी हो सकता है, फ्लोट भी। एक इंट लेंगे तो सभी इंट होंगे, फ्लोट लेंगे तो सभी फ्लोट होंगे, ठीक इस प्रकार से। लेकिन इसमें क्या है, अलग अलग टाइप के जो है डेटा है ना, उसको हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे कैर नेम है, ठीक है, कैर स्ट्रीट है, यहाँ पे ले लिया, कैर सिटी है, ठीक है, कैर स्टेट है, यहाँ पे इंटीजर भी ले लिया पेन। तो यहाँ पे फ्लोटिंग भी ले सकते, फ्लोट टाइप ले सकते हैं, कैरेक्टर टाइप ले सकते हैं, इंट टाइप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाउ टू डिक्लेयर स्ट्रक्चर वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे डिक्लेरेशन बताएगा, ए वेरिएबल डिक्लेरेशन विथ स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन स्ट्रक्ट पॉइंट इंट एक्स कॉमा बाय सेमीकोलन, ठीक है। p1 द वेरिएबल p1 इज डिक्लेयर विथ, ठीक है, पॉइंटर एंड स्टैक पॉइंटर, ठीक है, पॉइंट किया है इंट एक्स कॉमा, ठीक है, वाई। इस प्रकार से आप डिक्लेयर कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर मेंबर, ठीक है। किस प्रकार से स्ट्रक्ट पॉइंट इंट एक्स कॉमा वाई सेमीकोलन, ठीक है, इंट मैन, यहाँ पे बॉडी को डिफाइन किया गया है, ठीक है। ए तो इस प्रकार से आप इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ठीक है, स्ट्रक्चर एलिमेंट्स। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें इस प्रकार से स्ट्रक्ट पॉइंट इंट एक्स वो ये सब ये यहाँ पे। अब देखिए स्ट्रक्ट पॉइंट p1 इक्वल्स टू 0,1, ठीक है, यहाँ पे असाइन किया गया है। और देखो जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर में जो हम जो एक्सेस करते हैं वो क्या से करते हैं, p.x p.y, जो वैल्यू हम एक्सेस करते हैं वो डॉट से करते हैं। तो एक, ठीक है, एरो भी रहता है वो इनडायरेक्ट करते हैं, इनडायरेक्ट पॉइंटर रहता है, ठीक है। ये डायरेक्ट डॉट क्या रहता है, डायरेक्ट रहता है, ठीक है। और जो हमारा जो एरो रहता है वो इनडायरेक्ट पॉइंटर रहता है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है टावर ऑफ हनोई, ठीक है। टावर ऑफ हनोई अभी आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा है क्या अभी? डेटा स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, सी में पढ़ा तो है नहीं सर, अभी। बट ज्यादा समझ नहीं आया वो। चलो मैं बताता हूँ। ओके, देखिए टावर ऑफ हनोई इज अ मैथमेटिकल पजल which consists of 3 towers. Hello, any problem? And more than one ring is a, ठीक है। इसमें क्या रहता है, 3 टावर्स रहते हैं, और जो वहाँ पे जो रिंग रहती है ना, डिस्क रहती है, वो 1 2 3 कितनी भी हो सकती है, ठीक है। These rings are of different size
and stacks upon in an ascending order. The smaller one sits over the larger one. There are other variation of the puzzle where the number of discs increases but the tower count remain the same. ठीक है, तो टावर वो रहते हैं वो सेम रहते हैं और जो डिस्क हमारी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, अब रूल क्या है? रूल फॉर टावर ऑफ हनोई देखिए, द मिशन is to move all the disks to some another tower without violating the sequence of arrangement. A few rules to be followed of Tower of Hanoi. क्या रूल हैं देखिए। फर्स्ट है, only one disk can be moved among the tower at any given time. ठीक है, इसमें क्या रहता है, जो 3 टावर है ना, ओनली वन डिस्क एट अ टाइम मूव करेगी। ठीक है, यहाँ पे मिडल में ये सोर्स रहता है, डेस्टिनेशन रहता है, ये मिडल रहता है। ठीक है, तो एट अ टाइम हम कहीं पे भी जो डिस्क को मूव करेंगे सिर्फ सिंगल डिस्क को मूव करेंगे। ठीक है, ये रूल है इसका। सेकंड है, ओनली द टॉप डिस्क कैन बी, ठीक है, रिमूव्ड। तो यहाँ पे जो भी टॉप डिस्क रहेगी उसको हम रिमूव कर पाएंगे, या ऐसा नहीं होगा कि जो मिडल है हम मिडल को रिमूव करें, पहले टॉप को रिमूव करेंगे, इसके बाद मिडल को, उसके बाद जो नीचे है उसको। और देखिए थर्ड रूल है, नो लार्ज डिस्क कैन सिट ओवर द स्मॉलर डिस्क। इसमें ऐसा नहीं होगा कि जो स्मॉल डिस्क है उसको उसके ऊपर बड़ी डिस्क को हम शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसके 3 रूल है। ठीक है, फॉर एन डिस्क टावर ऑफ हनोई पजल विथ एन डिस्क कैन बी सॉल्व इन मिनिमम ऑफ 2 की पावर n-1 स्टेप। ठीक है, किसी भी, जैसे मान लीजिए आप n बराबर n इक्वल्स टू 1 लेते हैं, n वैल्यू, तो यहाँ पे तो -1, तो इसमें वैल्यू 1 आ जाएगी। तो मान लीजिए यहाँ पे 3 टावर हैं, अभी सॉरी 3 हैं, तो यहाँ पे ओनली 1 डिस्क लिया है ना, 1 डिस्क लिया तो कितने स्टेप में सॉल्व हो जाएगी ये प्रॉब्लम? इस वाले ये सोर्स टू डेस्टिनेशन को यहाँ पे डायरेक्ट हम इस डिस्क को यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, तो ओनली 1 स्टेप लगेगा। और अगर n की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो यहाँ पे 3 स्टेप में प्रॉब्लम ये चली जाएगी। ठीक है, कैसे हो जाएगा देखिए, अगर यहाँ पे देखिए 2 डिस्क लेते हैं ना तो कितने स्टेप लगेंगे देखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो है ना स्मॉलर डिस्क यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद देखिए स्मॉलर डिस्क ये है, अब जो डिस्क है ना जो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रांसफर हो गए। नेक्स्ट है देखिए, तो यहाँ पे अब इसके बाद जो है डिस्क है यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे और यहाँ पे मतलब कितना स्टेप लगा, ये तो मेन स्टेप था। इसके बाद देखिए 1 2 3। ठीक है, थर्ड स्टेप में ये कितना हो जाएगा, थर्ड स्टेप में ये कंप्लीट हो जाएगी ये प्रॉब्लम। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे जैसे 3 डिस्क ले गया है ना तो ये 7 स्टेप लगेगा, वो अभी आगे देखते हैं हम। ठीक है, ये पैटर्न है, देखिए पैटर्न समझाया गया है, पैटर्न एंड एग्जाम्पल ऑफ टावर ऑफ हनोई। ठीक है, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 2 डिस्क। ठीक है, यहाँ पे 2 डिस्क का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, तो ये है, और यहाँ पे पैटर्न ऑफ, अब देखिए यहाँ पे क्या है, पैटर्न क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे क्या है देखिए पैटर्न। मान लीजिए यहाँ पे ये है 2 के लिए था, तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, 1 यहाँ पे मैंने ट्रांसफर कर दी थी और इसके बाद इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 बचा था। इसके बाद मैंने किया था इसको डायरेक्ट यहाँ पे ट्रांसफर किया था। तो देखिए पहले कितना 2 है ना, 2 थी डिस्क, तो 2 मतलब 1 मैंने यहाँ पे डिस्क 1 क्या किया था, यहाँ पे शिफ्ट किया था 2, तो 1 यहाँ पे किया था। अगर मान ली 2 मतलब n बराबर 2 है तो यहाँ पे n-1 मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया था n-1। ठीक है, तो वही बता रहा है शिफ्ट n-1 डिस्क फ्रॉम a टू b। ठीक है, जैसे a है, ये b है और ये c है, तो n-1 डिस्क सबसे पहले मैंने यहाँ पे n-1 डिस्क यहाँ पे शिफ्ट किया, देन शिफ्ट लास्ट डिस्क फ्रॉम ए टू सी, और जो यहाँ पे जो लास्ट डिस्क बची थी ना, मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था। आफ्टर दैट क्या किया मैंने, शिफ्ट n-1 डिस्क फ्रॉम बी टू सी। इसके बाद मैंने क्या किया था, इस वाली डिस्क को उठा के यहाँ पे रख दिया था। मतलब ये 3 स्टेप हैं। ठीक है, आ रहा समझ में कि n-1 मैंने मिडिल में शिफ्ट किया पहले, फिर जो ए टू सी किया, जो बचा हुआ जो डिस्क है मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, और फिर नेक्स्ट लास्ट में n-1 जो यहाँ पे डिस्क थी ना वो उस यहाँ पे
मैंने शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे 3 स्टेप जो n के लिए है, ठीक है, किसके लिए, n के लिए। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था 2 का, लेकिन हम 3 के लिए भी अभी आगे देखते हैं। देख लीजिए, देखिए ये है 3 के लिए, तो यहाँ पे 3 डिस्क ली गई हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, और ये 3 टावर्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, फर्स्ट स्टेप में जो टॉप डिस्क है उसको हमने ट्रांसफर किया यहाँ पे। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में जो यहाँ पे डिस्क है यहाँ पे ट्रांसफर टू द मिडिल, सो मिडिल में इसको ट्रांसफर किया। इसके बाद देखिए ये सी पर है ना, इसको ट्रांसफर किया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ट्रांसफर हो गया। इसके बाद देखिए फर्स्ट जो सोर्स टू डेस्टिनेशन है यहाँ पे लास्ट में इसको यहाँ पे किया, तो यहाँ पे आ गया ये। नेक्स्ट देन क्या हुआ, 1 ट्रांसफर हो रहा है डिस्क यहाँ पे, इसको यहाँ पे ट्रांसफर किया तो ये आ गया यहाँ पे। इसके बाद देखिए इसको यहाँ पे ट्रांसफर किया तो देखिए यहाँ पे ये आ गया। इसके बाद डायरेक्ट हम इसको यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे फाइनली हमारा ये प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी यहाँ पे। तो कितने स्टेप लगे, 7 स्टेप लगे इसमें, जब हमने n = 3 डिस्क ली, ठीक है। तो देखिए तो वही है ना, तो यहाँ पे जो है क्या है प्रॉब्लम, आपको समझ में आ गया हो क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। आया ना समझ में, एन टर्म कैसे हो रहा है यहाँ पे n-1, और यहाँ पे ये 1 टाइम ले रहे हैं n-1। तो यहाँ पे जो हमारा ये देखिए रिकरेंस रिलेशन बनेगा ना, तो कैसे बनेगा, जैसे n-1 t प्लस n-1, ठीक है। और 1 टाइम लग रहा है, देखिए A to C में कितना लग रहा है, ओनली 1 टाइम लग रहा है, ठीक है। तो टोटल ऐड होके कितना हो जाएगा, 2t n-1 प्लस 1। ये टावर ऑफ हनोई जब इसको डिफरेंस रिलेशन से सॉल्व करेंगे तो ये स्टेप आ जाएगा 2 की पावर n-1 ये, ठीक है। इसमें अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो ये हमारा ये अभी सर आपको बताएंगे या बताया होगा डेटा स्ट्रक्चर में सर ने आपको, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई? सर हाँ हाँ। टावर ऑफ हनाई में जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो उसमें जो पहले इनिशियली में जो टावर में जो डिस्क दे रखी होती है वो एक ऑर्डर में होती है या फिर रैंडम रखी हुई हो सकती है? नहीं, वो ऑर्डर में ही रहता है। देखो आप ऑर्डर में मतलब जो नियम को फॉलो करना है, जो रूल है उनको मस्ट बी फॉलो, ठीक है। अगर ऐसा हो ये है ना, ये छोटा है, ये बड़ा है, ऐसा है, तो वो सब पहले जो प्रॉब्लम रहती है वो सॉर्टेड रहती है। मतलब जो है ना, जो उसका ऑर्डर है ना, वो रूल को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ओके ओके। हाँ हाँ ओके, समझ में आया ना प्रॉब्लम ये? ओके। यस। ओ अब इसके बाद असाइनमेंट अपलोड करते हैं, ठीक है। आप उनको देखिए, सुजीत सर आपको बताएंगे थोड़ा।